متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ابوظبی کے البطین قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں خاندان کے افراد کی شرکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے نئے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے مرحوم صدر کی وفات پر تعزیت کے لیے آج لندن سے ابوظبی روانہ ہوں گے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مضبوط بنانے میں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے ناظم الامور سے اظہار تعزیت۔ مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، دھمکیاں اور گالیاں دینا عمران خان کا وتیرہ رہا۔ انہوں نے چین سمیت پاکستان کے دوست ملکوں کو ناراض کیا۔ عمران خان سازش کے بیانیے کے ذریعے اپنی کارکردگی سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ کوئی پارٹی یا ادارہ پاکستان کو تنہا نہیں چلا سکتا۔ ہر پاکستانی کو اس کی صلاحیت کے مطابق بروئے کار لانا ہوگا۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ نجی شعبے کو مضبوط بنائے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے چرچ کے میدان کو جلسہ گاہ بنانے پر مسیحی برادری سراپا احتجاج۔ جلسہ کرنا تمہارا حق ہے، لیکن مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہ تمہارا حق ہے نہ تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا ٹویٹ۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت قرآن دازی کل ہوگی۔ وقت کی کمی کے باعث درخواستوں کی وصولی میں توسیع نہیں کی گئی۔ درخواست گزاروں کو وزارت کی جانب سے تصدیقی پیغامات بھیجے جا چکے ہیں۔ اور اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید اضافے کی توقع ظاہر کر دی۔ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور پیٹ کے امراض کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ طبی ماہرین کی رائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ناظرین، ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں۔ آج کی جو اہم خبریں ہیں ان میں ایک تو افسوسناک خبر ہے، متحدہ عرب امارات کے صدر گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ سیاسی بیانات کا تذکرہ ہوگا۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی آج کے اس نیوز ایٹ 6 شو میں شامل ہوں گی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت قرآن دازی کل ہونے جا رہی ہے اور سلما موسم شدید گرم ہے اور اس کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کیا احتیاطی تدابیر آپ کو اختیار کرنی ہے۔ یہ سب کچھ شامل ہوگا آج کے نیوز شو میں۔ ان تمام تر تفصیلات کو شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
نیوز شو کا آغاز کریں گے متحدہ عرب امارات کی ترقی کی علامت اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کو ابوظبی کے البطین قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق نماز جنازہ میں شیخ نہیان خاندان کے افراد نے شرکت کی۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان امارات اور دنیا بھر میں اپنی فلاحی سرگرمیوں اور انسان دوستی کی بدولت بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ رضوان، ان کی وفات سے عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات پر متحدہ عرب امارات میں 40 دن کے سوگ اور 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان ہوا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور UAE کی سپریم کونسل نے متحدہ عرب امارات کے نئے صدر کے نام کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ان کا انتقال گزشتہ روز ہوا تھا رضوان، اور آج ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ گزشتہ 7 سال سے وہ علیل تھے اور بلا شبہ ان کی جو خدمات ہیں ان سے انکار ممکن نہیں۔ ان کا جانا ایک بڑا خلا چھوڑ کر گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات پر تعزیت کے لیے آج لندن سے متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور وہ کل متحدہ عرب امارات کے نئے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے مرحوم صدر کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی وفات کو امت مسلمہ کا بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عظیم دوست شیخ زید کی وفات کے بعد شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے اپنے والد کے مشن کو قابلیت سے آگے بڑھایا۔ بالکل، 50 سال کی مسلسل محنت UAE کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے کر گئی تھی اور وزیر اعظم نے مرحوم کی بلندی درجات، UAE کی حکومت اور عوام کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ ادھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کا دورہ کیا ہے۔ ناظم الامور سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج سفارت خانے کا وزٹ کیا اور وہاں پر تعزیت کیا اور اپنے تاثرات درج کیے مہمانوں کی کتاب میں، اور جو سوگ 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ UAE میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام بھی، پاکستان کی حکومت بھی، پاکستان کی مجموعی طور پر ہماری جتنی بھی قیادت ہے وہ UAE کے عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کر رہی ہے اور ان کے غم میں برابر کی شریک بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں شو میں، خبروں کا کچھ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، سیاسی بیانات سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے سازش کے بیانیے کے ذریعے وہ اپنی کارکردگی سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ 4 سال تک نااہل اور نالائق لوگ اقتدار سے چمٹے رہے۔ اس دوران مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا، دھمکیاں دینا اور گالی دینا ہمیشہ سے عمران خان کا وتیرہ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے آئین اور پارلیمان پر حملہ کیا، اب بھی تحریک انصاف ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رضوان عارف نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان نے آئین اور پارلیمان پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال نااہل اور نالائق لوگ اقتدار سے چمٹے رہے۔ سیال کوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں، ججز کو گالی دے رہے ہیں، ملک میں انتشار، ملک میں فساد، ملک میں انارکی، صرف ایک وجہ سے کہ آج آپ اس اقتدار کی کرسی پر نہیں ہیں؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ وہ نیب کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ مسیحی برادری چرچ کا گراؤنڈ مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو مسیحی برادری اور ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا۔ جلسے کی اجازت مانگی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو یہاں گراؤنڈ ہے چرچ والا، اس میں وہ عبادت گاہ ہے، وہ استعمال کرتی ہے مسیحی برادری۔ اس میں تمام تفصیل اس خط میں 9 مئی کو لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو دے دی گئی تھی ان کی طرف سے، لیکن
क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है। फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले करवा लेंगे। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत का बयानिया अवाम को रिलीफ देना और महंगाई को कम करना है। मुस्लिम लीग नून का फोकस मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाना है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब कुछ बात करें मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल, जिनका ये कहना है कि तमाम जमातें मिलकर मुल्क की इक्तिसादी समत को दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर सकती हैं और मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त अच्छी नहीं है और कोई एक लीडर, वाहिद सियासी जमात या फिर कोई एक इदारा अकेले इस मौजूदा सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकता। बिल्कुल, शाहरुख शफी ने एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है और सबको मिलकर तरक्की के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में डिजिटल इनकलाब हर शोबे में दाखिल हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 8 सालों से जो पेंडिंग इशू था 3G 4G लाइसेंसेस का, उसको नहायत ट्रांसपेरेंट अंदाज में हमने फौरी तौर पे जब हल किया कि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, more than 1 million laptops were distributed that helped us in creating a new class of IT entrepreneurs. एहसन इकबाल ने कहा कि इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए हुकूमत ने नौजवानों के लिए खुसूसी फंडिंग की और हर यूनिवर्सिटी से कहा गया कि वो इनक्यूबेशन सेंटर तैयार करें ताकि नौजवानों में स्टार्टअप कल्चर को फरोग दिया जा सके और वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हम सबको इसमें नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि रॉकेट स्पीड के साथ चलने की जरूरत है। आप काम करें, आपको हम पीछे से जिस हद तक सपोर्ट दे सकेंगे करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने कहा कि आने वाले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत एक खुसूसी फंड तैयार करेगी जिसके तहत ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की माली मुआवनत की जाएगी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़। दुनिया में डिजिटल इनकलाब तमाम शोबों में शामिल हो चुका है और अब सलमा हम देखें तो कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें बात की जाए या फिर आपके पैसे ट्रांसफ़र करने से लेकर आपने राब्ता करने तक पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज सही मानों में अब दुनिया बनी है, जब 4G के बाद अब 5G की तरफ दुनिया जा रही है। बिल्कुल, और अब हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो चुके हैं बहुत हद तक। जब जहाँ तक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते वहाँ पे हमारी मुश्किलात का आगाज़ होता है। हमें किसी से राब्ता करना हो, हमें कोई काम करना हो, हमें अपने रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में लेके आना हो, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं, ऑप्शंस हैं जहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बगैर शायद हम अपने काम में वक्त की बचत नहीं कर पाते और उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते कि स्मार्टली हम उसको परफॉर्म कर सके, जिसको कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, रिजवान क्या कहते हैं उसको? डिजिटलाइजेशन। वेल जी, पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान न्याजी के बदअखलाकी ने मुआशरे में इंतशार फैलाकर मुल्क को दो राहे पर लाकर खड़ा किया है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात सियासी जमातों समेत पूरी कौम से जिम्मेदारियों का तकाजा कर रहे हैं। तफसील क्या है ये बताएंगे नवीद हयात। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम से तरक्की के झूठे वादे किए और आज भी वो आलमी साजिश के बेबुनियाद बयानिए के जरिए आम आदमी को धोखा दे रहे हैं। कोई साजिश का जिस सर पड़ रही है वो अवाम को धोखा दे रहा है, जिस तरह इसने अवाम को धोखा दिया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसने वादा किया मैं 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इसी तरह आज ये झूठ बोल रहा है। अब इसके झूठ खत्म होने का वक्त आ गया है। कानून हरकत में आएगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको सिखाएंगे। अगर ये अपना जो है ना वो प्यार से नहीं समझता, सख्ती से सिखाएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन तुम्हारी अना से बड़ा है। हमजा शहबाज ने कहा कि सियालकोट में जिस मकाम पर तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है उस पर मसीही बरादरी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी और उनके साथी मुल्क में खून खराबा चाहते हैं, ताहम इन्हें कानून शिकनी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इमरान न्याजी, एक बात बता दूं, मैं जमहूरियत पसंद हूं, मैंने जेलें काटी हैं, मेरी पार्टी क़यादत ने जेलें काटी हैं, लेकिन तुम्हें आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सियालकोट में कहीं गौर करो, अगर तुम चाहते हो कि मसीह बरादरी जो है वो नाराज हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो और वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अफसोसनाक वाक़या, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो
तो अवाम जान ले, यहाँ जलसा करना चाहता है करे, तमाशा लगाना चाहता है कराए, लेकिन कानून के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक सवाल के जवाब में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत लोड शेडिंग और महंगाई समेत आम आदमी को दरपेश तमाम मसाइल से आगाह है और इनके हल के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के हुकूक की रखवाली हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से मसीही बरादरी इस बात पर एहतजाज कर रही है कि चर्च की ग्राउंड में जलसा उनकी इबादतगाह की तौहीन है। जलसा करना आप लोगों का हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना आपका हक नहीं है, ना तुम्हें इस बात की इजाजत होगी। मरियम नवाज ने सियालकोट में जलसे के हवाले से ट्वीट किया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, कई दिनों से मसीही बरादरी इस बात पर सरापा एहतजाज है कि चर्च के ग्राउंड में जलसा इनकी इबादतगाह की तौहीन है। उन्होंने कहा कि जलसा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना तुम्हारा हक नहीं है, ना ही तुम्हें इसकी इजाज़त होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में चर्च के मैदान को जलसा आगाह बना दिया है, जिस पर मसीही बरादरी सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुकद्दस जगह को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है और रिजवान पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि अक़लियतों के हुकूक का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उनको तमाम हुकूक दिए जाते हैं, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और अक़लियती जो बरादरी है हमारी, उसको भी उतने ही हुकूक हासिल होते हैं जितने एक दूसरे पाकिस्तानी शहरी को हासिल होते हैं। और जलसा करने के लिए सलमा हम देखें, जो ज़राई इंतज़ामिया होती है, शहरी इंतज़ामिया होती है, उसको दरख्वास्त दी जाती है। इस हवाले से हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस भी मौजूद हैं जलसा करने के लिए, अवामी मकामात पर जलसा, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मुश्किलात में या फिर उनके मामूलात में किसी किस्म का रखना नहीं डालना चाहिए। ये वाज़ेह डायरेक्शंस हैं, हिदायत मौजूद हैं। तहम ज़राई इंतज़ामिया से जब दरख्वास्त की गई थी जलसे के लिए, तो उसमें ज़राई इंतज़ामिया ने बता दिया था कि ये एक जलसा गाह, आपकी ये ग्राउंड नहीं बन सकता, क्योंकि ये चर्च की जगह है और यहाँ से मसीही बरादरी के जज्बात को ठेस पहुँचेगी, उनके लिए मुकद्दस जगह है, तो यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। आप किसी मुतबादल जगह पर आपको जगह फ्राहम कर देते हैं जहाँ आप जलसा करना चाहते हैं, आप खुद से ऐसी जगह का इंतखाब कर लीजिए, हम आपको इजाज़त दे देंगे, किसी किस्म की रुकावट नहीं। और अब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में अगर जलसे कर रही हैं, सियासी जमातें जलसा करना चाहती हैं, तो उन्हें किसी किस्म की किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे हैं,
اور انتظامیہ نہ صرف انتظامات میں ان کی مدد کرتی ہے بلکہ سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہے. منظم انداز سے جلسوں کو آگے بڑھانے کے لیے انتظامیہ پیش ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے گی صرف اور صرف اس لیے تاکہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے, تو اس کی اجازت شاید نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی. بالکل رضوان, ہر جگہ پہ ملٹیپل آپشنز موجود ہوتے ہیں. اگر جلسہ کرنا ہو تو بہت سے گراؤنڈز ہوتے ہیں, کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی کانفلکٹ نہ ہو, جہاں پر اس طرح کے مسائل نہ ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جس جگہ سیاسی اجتماع کیا جا رہا ہے وہ چرچ کی زمین ہے اور مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس لیے وہاں پر ناچ گانے کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں اسٹیڈیم موجود ہے, سیاسی جماعت کو وہاں جلسہ کرنا چاہیے. چرچ میں اس طرح کے اجتماعات سے مسیحی برادری کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عمران نیازی صاحب, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ کو بھرپور تعاون دیں گے, آپ سیالکوٹ کے اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. آپ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں, آپ کی منشا ہے, مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ کرسچن مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں, جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیحی بھائیوں کا آپس میں دنگا فساد ہو, جھگڑا ہو, خدا نخواستہ خون بہے, تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس ضمن میں اس مذہبی ایشو کو کنٹرول کرنے کے لیے سیالکوٹ میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں بھی عمل میں اگر لانی پڑی تو ہم لائیں گے. اور ناظرین, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کو نشانہ بنانا پاک چین دوستی کو کمزور کرنے کی سازش ہے. پاکستان اور چین کا ایک لازوال رشتہ ہے جو کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. وزیر خارجہ وزارت خارجہ میں چینی باشندوں کی یاد میں تعزیتی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس حوالے سے ذیشان علی بھٹی کی یہ رپورٹ شامل کرتے ہیں. کراچی میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے چینی باشندوں کی یاد میں وزارت خارجہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین دوستی ریاست اور عوام کی سطح پر ہے. چینی شہری ہمارے مہمان ہیں, ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا. جیسے ہم نے ماضی میں دہشت گردی کا مقابلہ کر کے جیتے ہیں, ان دہشت گردوں کا ہم مقابلہ کریں گے, کامیاب ہوں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ جو بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور چین کی دوستی پہ اس قسم کا حملہ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. چینی ناظم الامور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے باہمی مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کے عزم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. After this tragedy happened, people from all sectors in Pakistan condemned the terrorist attack and mourned for the victims. This fully demonstrates that China and Pakistan owe their friendship is deeply rooted in the hearts of our two peoples. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ میں چینی باشندوں کی تصاویر پر پھول رکھے اور 1 منٹ کے لیے خاموشی بھی اختیار کی گئی. تقریب میں وزارت خارجہ کے افسران سمیت چینی سفارتخانے کے حکام نے بھی شرکت کی. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور ناظرین, اب کچھ بات کریں گے ہم عوام کی سہولت کے لیے, اور خوشخبری ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. شہر قائد میں جدید سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے عبدالستار ایدھی اورنج لائن بسوں کی کھیپ کراچی پورٹ پر پہنچ گئی ہے. ان بسوں کے سڑکوں پر رواں ہونے سے شہریوں کو معیاری سفری سہولت میسر آئے گی اور عوامی جو منصوبہ ہے اس کے ثمرات عوام تک پہنچ پائیں گے. لوگوں کے لیے وقت کی بچت ہوگی, سفر کرنا آسان ہوگا, اور گرمی کے موسم میں اگر اچھی ٹرانسپورٹ مل جائے رضوان تو آپ کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں. اور سلمہ, جب ہم بات کرتے ہیں عوامی سہولت کی, سفری سہولت کی, تو اس میں صاف ستھری بسیں, محفوظ سفر, خاص طور پر جو ہم اب دیکھتے رہے ہیں کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کا حال رہا ہے ماضی میں, اور جس طرح کی وہاں پر سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں اور لوگوں کو مشکلات درپیش ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر, اور خواتین کے لیے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ورکنگ ویمن ہیں, ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا. تاہم حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی, اور بہترین سفری سہولیات کے لیے عبدالستار ایدھی اورنج لائن
बसेस की जो खेप है वो पोर्ट पर पहुंच चुकी है। और इस बार अगर रोड कंडीशंस की भी बात करें तो इस्लामाबाद और कराची के जो डिस्टेंस हैं, जो रोड कंडीशंस है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। इस्लामाबाद में फासले छोटे छोटे होते हैं, 15 से 20 मिनट में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कराची में आपको ज़रा लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो अगर बस अच्छी हो तो आपके सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है। मोहम्मद जुहैब ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। शहर कायद के बासियों के लिए एक और खुशखबरी, आवाम को मिलेगा टूटी फूटी खटारा बसों से छुटकारा। शहरियों को फरसुदा और तबाहाल ट्रांसपोर्ट के अजाब से निकाल कर जदीद और बेहतर ट्रांसपोर्ट देने का सिंध हुकूमत का वादा तकमील के आखिरी मरहले में। खस्ता हाल और धुआं छोड़ती बसों से परेशान शहरी अनकरीब खूबसूरत एयर कंडीशन बस में आरामदेह सफर कर सकेंगे। कई दहाइयों से ट्रांसपोर्ट के मसाइल से दो चार शहरी ऑरेंज बसों की आमद से खुश नजर आते हैं। ऑरेंज बसें कराची पहुंच गई हैं, बहुत अच्छी बात है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि 50 बसें आ गई हैं और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑरेंज बसों की आमद कराची के लिए किसी कुछ चीज़ें कम नहीं। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की कुशादा बसें औरंगी टाउन के आवाम को 3.8 किलोमीटर के रूट पर उम्दा और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करेंगी, जबकि ऑरेंज लाइन को बोर्ड ऑफिस जंक्शन पर ग्रीन लाइन मंसूबे से भी जोड़ा गया है। इस रूट पर 5 बस स्टेशन हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी चल जाए, सुकून हो जाएगा लोगों को। औरंगी टाउन से जो यहाँ पर आते हैं बोड़ाबिस तक, बोड़ाबिस के लिए जो कैरियर लेंगे आगे ग्रीन लाइन के, उन लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। बहुत सहूलत हो जाएगी आवाम को, क्योंकि पूरा औरंगी टाउन फ़ायदा उठाएगा इससे। ये अगर जल्द मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो हुकूमत का हम शुक्रगुजार हो जाएंगे। ये चालू हो जाता है, आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। लोगों का कहना है कि ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट से रोजमर्रा पेश आने वाले ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे और सफर में आसानियां पैदा हो जाएंगी। मोहम्मद जुहैब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस करें, अपनी मसनूआत को प्रमोट करें, अपने जो तिजारती तशख़्ख़ुस है उसको मनवाएं। आप मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हैं उनको दुनिया भर में जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आप उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें और ज़्यादा उनको उनकी एक्सपेंशन करें। जितना हो सके आप दुनिया को बताएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए माई कराची एक्सपो का आगाज़ हो चुका है। इस नुमाइश का मकसद सरमा यह है कि जैसे आप बात करें तजारती तशख़्ख़ुस की या फिर मेड इन पाकिस्तान अशिया की, जो हमारे यहाँ अशिया बनाई जाती हैं वो कितनी पायदार होती हैं, कितनी खूबसूरत होती हैं, इस हवाले से इस एक्सपो का इनेकाद किया गया था। और इस एक्सपो में वो तमाम अशिया रखी गई हैं जो पाकिस्तान में बनाई गई हैं। माई कराची विजन है इस एक्सपो का, इसका नाम है माई कराची और इसमें मेड इन पाकिस्तान अशिया की नुमाइश जारी है। इसी बारे में नौरीन आसिफ की एक रिपोर्ट है, आप भी देखिए। कराची ऐवान-ए सनत और तिजारत की जानिब से एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज के लिए लगाए जाने वाली इस नुमाइश का मकसद मुल्क के तजारती तशख़्ख़ुस और मेड इन पाकिस्तान को उजागर करना है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहर कायद मुआशी हब है। सिंध हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में लागत को कम करने के लिए इकदाम कर रही है ताकि सूबे में सरमायाकारी में इजाफा हो। कराची एब्सोल्युटली is the engine of growth. It is a driving force behind the whole country. 90% potential Karachi में tax देने का, because we will make people of Karachi earn so that they pay taxes. एक कमेटी बनाएंगे with the business community, जिसमें गवर्नमेंट के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिशियंस सब साथ मिलके इस शहर की बेहतरी, सूबे की बेहतरी के लिए जो करना है। हमने उस कमेटी के अंदर कहा है कि हम एक सब कमेटीज इंफ्रास्ट्रक्चर की, एनर्जी की, पानी के हवाले से, गार्बेज कलेक्शन के हवाले से, वेस्ट वाटर के हवाले से ये सब बनाएंगे ताकि हम आगे बढ़ें। वज़ीर आला सिंध ने कराची में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब है और ना ही कोई ज़बान, उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तकरीब से KCCI के सदर मोहम्मद इदरीस ने खिताब करते हुए कहा कि ये नुमाइश मुल्क की हकीकी तिजारती सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 17वीं माई कराची नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस नुमाइश में 220 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मुल्क की मारूफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नौरीन आसिफ रिपोर्ट कर रही थी और 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर मेड इन पाकिस्तान मसनूआत रखी गई हैं और इसमें बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी शिरकत कर रहे हैं। और जब मेड इन पाकिस्तान की बात हो रही है तो स्वाद की बात भी करते हैं, जहां पर लकड़ी से तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ ऐसी अशिया हैं जिनसे न सिर्फ सकाफत की तरवीज होती है बल्कि कारीगरों के लिए ये रोज़गार का एक बहुत बड़ा और अहम ज़रिया है। कैसे बनाई जाती हैं लकड़ी से अशिया और उनकी तज़ीनो आराइश कैसे की जाती है, उनकी खूबसूरती कैसी होती है, इस पर सुहेल अहमद दानिश की रिपोर्ट देखते हैं। सवात में मुकामी तौर पर लकड़ियों से बनाए जाने वाले अशिया पूरी दुनिया में मशहूर है, जो इस वादे की पुश्तून सकाफत की तर्जुमानी कर रही है। मुकामी कारीगर अपने हुनर की मदद से अखरूट और दियार की लकड़ी से ऐसे देदा ज़ेब अशिया तैयार करते हैं जो देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराती है। हमारे पास लकड़ियों के जितने भी बर्तन हैं ये यहाँ के कारीगर मकामी तौर पर तैयार करते हैं। इसमें अखरोट और दियार की लकड़ी इस्तेमाल होती है। स्वात आने वाले सियाह हमसे ये खरीदते हैं, जबकि बैरूनी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी भी इसकी मांग करते हैं। स्वात आने वाले सयाह यहाँ की कुदरती नज़ारों से महसूस होने के साथ साथ ये नायाब और खूबसूरत बर्तन भी अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर स्वात में आया हूँ, मेरा एक भाई है वो फ्रांस में रहता है, उसने ये चीज़ें ऑनलाइन देखी है तो उसने कहा कि हमारे लिए भेज दो। मैं यहाँ पर इस चीज़ों के लिए आया हूँ, ये उसके लिए लेना चाहता हूँ। वो ये गिटार और साथ ड्राई फ्रूट की जो सामान है ये उसके लिए भेज देता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पर ये लोग अपने हाथों से बना रहे हैं। लकड़ी से बनी ये अशिया दुनिया भर में पुश्तून सकाफत की तरोीज के साथ साथ मुकामी हुनरमंदों के लिए रोज़गार का एक अहम ज़रिया भी है। सुहेल अहमद दानिश, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सवात। और नाज़रीन, रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा जो शुमाली कुराए अर्ज में दिखाई देगा, लेकिन पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये साल 2022 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। जनूबी अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ता के ममालिक में इस चांद ग्रहण का मुशाहिदा मुमकिन है। मुकम्मल ग्रहण के दौरान चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएगा। ये चांद ग्रहण 85 मिनट तक बरकरार रहेगा। सलमा, आप चांद ग्रहण की बात करी थी, ये कुदरत के नज़ारों में से एक नज़ारा है और 85 मिनट तक जो चांद है वो बिल्कुल सुर्ख माइल हो जाएगा और जिन ममालिक में इसका मुशाहिदा किया जाएगा यकीनी तौर पर वहाँ पर लोग देखेंगे। पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। अच्छा रिजवान, जब इसका रंग लाल हो जाता है तो इसको ब्लड मून भी कहा जाता है। इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होती है और ये बड़ा रेयर नज़ारा होता है जो लोगों को देखने में मिलता है, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि आपकी बिनाई मुतासर होने का खदशा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप घर से इस तरह बाहर ना निकलें कि आप चांद का नज़ारा करने जा रहे हैं और खुदा न खास्ता आपकी आंखें इफेक्ट हो जाएं। अच्छा, आपके ब्लड मून से मुझे याद है, अक्सर देखते हैं चांद अपनी हैयत से या फिर जिस साइज़ का चांद हमें कुराए अर्ज से नज़र आता है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा चांद नज़र आता है, ख़ासतौर पर 14वीं की तारीख को। लेकिन तब चांद ज़मीन से जुज़वी तौर पर करीब होता है जब वो सुपर मून उसे कहा जाता है। ब्लड मून और सुपर मून की हम बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे उन खुश नसीबों का जो इस मरतबा हज की सारत हासिल करेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत कुरानंदाजी कल हो रही है। मजहबी उमूर की वजारत के मुताबिक इस साल सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 81,132 अफराद का हज कोटा दिया है। मजहबी उमूर की वजारत ने मुजव्वज़ा हज पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह तजवीज़ दी है कि इस साल 60% पाकिस्तानी प्राइवेट स्कीम और 40% सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अंजाम देंगे, लेकिन ये फैसला वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद हो पाएगा। हज कुरानंदाजी इतवार की सपहर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होगी, जिसमें मजमूई कोटे के 40% के हिसाब से तकरीबन 32,000 सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अंजाम देंगे। और कुछ मौसम की बात हो जाए रिजवान, मौसम काफ़ी गर्म है। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत तकरीबन एक जैसी, और इस बार प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है और ज़्यादा शहरों में होगा। पहले हम देखते रहे कि पाकिस्तान के चंद शहर हैं जहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सिब्बी की बात की जाए, सेंट्रल या फिर जनूबी पंजाब की बात की जाए, बलूचिस्तान के कुछ शहर हैं या फिर कुछ अजला हैं सिंध के जहाँ पर टेम्परेचर इस कदर ऊपर जाते हैं। लेकिन इस मरतबा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो मौसम है उसकी शिद्दत हमें अप्रैल में महसूस हुई और इस वक्त तवील गर्मियाँ होंगी और इसकी शिद्दत में भी इजाफा है। ताहम आने वाले दिनों में
गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ये इजाफा कितना होगा, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये जान लेते हैं अनीस आवान से। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। सिंध और बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में शदीद हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग है, उसका एक इफ़ेक्ट है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो दुनिया में जो है वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो हीट वेव्स हों, बारिशें हों, सैलाब हों, जो आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक आंसर है, मज़ीद एक हफ़्ता जो है वह हीट वेव जो है परसिस्ट करेगी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में। थोड़ा सा जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि स्लाइट रिलीफ के चांसेस हैं आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान, जब शाम या रात के वक्त आंधी गर्द आलूद हवाएं झकड़ चलेंगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को दिन के औकात में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। शहरी खुद को हीट वेव से बचाने के लिए सर को ढांप कर रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मई में इतनी गर्मी है तो आगे जाके क्या होगा, तो यही है कि अब हम दरख्त लगाएं और ग्रीनरी बढ़ाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद टेम्परेचर है। घरों में रहें, ख्याल रखें, बाहर निकलना है तो अपनी थोड़ी केयर करके निकलें। हीट वेव से बचने के लिए जिस्म में नमकियात और पानी का तवाज़न बरकरार रखना जरूरी है। गर्मी की मौजूदा लहर के पेश नज़र अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं परिंदे और जानवर भी गर्मी से मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन ने शदीद गर्मी के बायस फसलों और फलों की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। न सिर्फ हैवान इंसान मुतासर होते हैं गर्मी से, बल्कि अनीस तो बता रहे हैं कि इसमें जो परिंदे हैं उनके अलावा फसलों की पैदावार भी मुतासर हो रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। और अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, तो सलमा ग्लेशियर्स भी पिघलना शुरू हो गए हैं और उनकी जो मकदार है वो कम होना शुरू हो गई है। वहाँ से पानी पिघल कर अब दरियाओं की तरफ बढ़ने लगा है। और उस पुल की बात करते हैं जो कुछ दिन पहले टूटा था और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात लोगों को पेश आई थी वादी हुंजा के इलाके हसनाबाद में। और जो पुल टूटा था उसकी मरम्मत का काम अभी जारी है ताकि आवाम की सहूलत के लिए एक पैदल राह गुजर बना ली जाए और लोगों का जो सफ़र है एक से दूसरी तरफ का वो आसान हो सके। आर्जी तौर पर एक पैदल गुजरगाह बनाई गई है और लोगों की आमदोरफ्त को जारी रखने के लिए, उनके उमूर अंजाम देने के लिए, उनके लिए आसानी के लिए इकदाम उठाए गए हैं। तहम मुस्तकिल पुल की तामीर का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हसनाबाद से इकराम नजमी की ये रिपोर्ट देखते हैं। आज से 7 रोज कबल जो हसनाबाद ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाद जो शाहरा खरखुम पे पुल टूटने और ज़मीनी रास्ता कट जाने की वजह से 2 गांव जो आपस में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हसनाबाद का 2 गांव, अब उनके लिए एक ज़मीनी पैदल पुल बनाया जा रहा है जिसका काम कल रात से स्टार्ट हुआ था और अब तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और कुछ टाइम बाद ये पुल मुकम्मल तौर पे फंक्शनल होगा। अब भी लोग उस पे से गुजर रहे हैं। इसके अलावा बहाली का काम अब जोर शोर से जारी है। जो पुराना पुल है उसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको भी गिराया गया है ताकि वहाँ पे मतलब छोटे गाड़ियों के लिए ब्रिज तामीर हो सके आर्जी तौर पे। इसके अलावा जिन जिन गाँव के लिए पानी मुनक़ता हो चुका था, पीने का पानी और आपाशी का पानी, उनको भी बहाल किया जा रहा है उन चैनल्स को। इसके अलावा बिजली का जो 1.2 मेगावाट का जो पावर हाउस हसनाबाद में बंद हो गया था वो भी कल रात से मतलब चलाया गया है और उससे बिजली फराहम की जा रही है। जी, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। रिजवान ने हिंट दिया, लेकिन मुझे पता है ये बात हो रही है उर्दू ज़बान के मारूफ शायर हकीम मोमिन खान मोमिन की, जिनकी वफ़ात को 100 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया है, लेकिन उनका कलाम और उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब में सनद का दर्जा रखती है। मोमिन खान मोमिन की अदबी ज़िंदगी कैसी रही, इस पर नजर डाल रहे हैं हसन नासिर से। देखिए, हकीम मोमिन खान मोमिन, जिनका ख़ानदानी नाम मोहम्मद मोमिन खान और तखल्लुस मोमिन था, सन 1801 को दिल्ली के एक इल्मी और मजहबी घराने में पैदा हुए। अरबी और फारसी की तालीम घर पर हासिल करने के बाद उन्होंने तिब, इल्म नजूम और मौसीकी में भी कमाल हासिल किया। मोमिन को बचपन ही से अदब से दिलचस्पी थी और उन्होंने इब्तिदाई जवानी ही से शेर गोई शुरू कर दी थी। मोमिन खान मोमिन ने जहान शायरी में कसीदा, रुबाई, मसनवी और तरकीब बंद समेत तमाम असनाफ सुखन पर तबाज़माई की। ताहम उनका असल मैदान गज़ल था जिसमें उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की।
मोमिन शायरी में मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के हम असर थे, जबकि मोमिन के इस शेर के बारे में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि मेरा पूरा दीवान ले लीजिए और अपना ये शेर मुझे अदा कर दें। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन एक आज़ाद मिजाज, काने और वतन परस्त इंसान थे, जबकि उमरा और रऊसा की खुशामद से उन्हें नफरत थी। यही वजह थी कि वो अपने हम असरों में नुमाया मकाम रखते थे और उनका शुमार असातिज़ा शोरा में होता था। मोमिन की तसानीफ में कुलियात मोमिन, दीवान मोमिन और इंतखाब कलाम मोमिन शामिल हैं, जो कि उर्दू अदब और शायरी में मुस्तनद हैसियत रखते हैं। जहान शेर और अदब में गिरा कदर काम करने वाले हकीम मोमिन खान मोमिन दहलवी 14 मई 1852 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आज एक और अहम शख्सियत की बरसी भी है जिनको भूलना नामुमकिन है। उनकी बहुत सी खिदमात हैं। नामवर फनकार, कॉलम निगार फारूक कैसर साहब, जिनको अंकल सरगम के नाम से भी याद किया जाता है, आज उनकी पहली बरसी है। फारूक कैसर ने 1970 के दहाई में नेशनल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और बहुत सारे मशहूर कॉमेडी शो कलियां से उन्हें शोहरत की बुलंदियां हासिल हुई। वहीं अंकल सरगम हम जैसे तमाम जो नौजवान हैं, जो अब 30+ हो गए, 90s के जो किड्स हैं, 80s के जो किड्स हैं, उनके बचपन को हसीन बनाने में, यादगार बनाने में अंकल सरगम फारूक कैसर साहब का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान टेलीविज़न का वो हिस्सा रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न पर उन्होंने प्रोड्यूसर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दी। फारूक कैसर के फ़न के शोबे में शानदार खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और कई दूसरे आला एजाज़ात से भी नवाजा गया। 76 बरस की उम्र में गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। और इस खबर के साथ ही हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।